2 मिनट और वेट करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, देन आई विल स्टार्ट द लेक्चर. Just raise your hand if you can hear me clearly. You can raise your hand if you can see the screen. Okay, so today we'll talk about the glomerular filtration and its auto-regulation. You have already gone through the introduction of the nephron. Okay, so one of the main function of the nephron is to form urine. Okay, urine formation में इसका major role है, and there are 3 steps in the formation of urine. First step is the glomerular filtration. Second would be the tubular reabsorption, and third would be the tubular secretion. Okay, so today we'll talk about the first step of the urine formation, that is the glomerular filtration. These are the objectives of today's lecture. We will first discuss what do you mean by glomerular filtration, then what is the mechanism of filtration, and what is glomerular filtration rate and how it can be measured, regulation of GFR and the renal blood flow. तो अब glomerular filtration क्या है? This is actually the amount of plasma that is passing through the glomerular capillaries, okay, and coming into the Bowman's capsule. This is the glomerular filtration. Okay, whatever the amount of blood is passing through the glomerular capillaries, it will enter into the Bowman's capsule. ठीक है, filtration होगी. Bowman's capsule है. This is the vascular component, means the tuft of capillaries is the Bowman's capsule. Glomerular capillaries है. Glomerulus is actually the tuft of capillaries है. ठीक है.
इसको हम समटाइम्स वी कॉल इट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि even the minute components or minute products will be filtered by the glomerular membrane। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें से फिल्टर होगी, तो इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा कह रहे हैं। लेकिन इस फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि जो फिल्ट्रेट बनेगा, ठीक है, जो फ्लूइड बाहर जाएगा जीएफआर से से ग्लोमेरुलर से इनटू द ट्यूबुलर कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन, उसमें वी डू नॉट हैव प्रोटीन्स एंड द ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट बीइंग पार्ट ऑफ द फिल्ट्रेट दैट इज फॉर्म बाय द ग्लोमेरुलस एंड द बोवेन्स कैप्सूल। ठीक है, उसमें हम अभी डिस्कस करते हैं कि व्हाई proteins and the blood cells cannot be part of the filtrate or the filtration। अब इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है इट इज हैपनिंग थ्रू द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट वी आल्सो कॉल फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। नाउ दिस filtration membrane is actually formed by three layers। First and the outermost layer is the capillary endothelial layer। ठीक है, glomerular की जो membrane है, glomerular capillary wall या endothelial cells that actually form this layer। ठीक है, second layer would be the basement membrane। basement membrane is actually acellular glycoprotein layer। ठीक है, acellular layer है। it consists of two components, glycogen and glycoproteins। ठीक है, glycogen and glycoproteins। अब जो collagen and the glycoproteins है। Collagen that is present in the basement membrane, what is the function of collagen in this over here is actually it maintains the structural integrity। Structural strength is provided by the collagen present in the basement membrane, while the glycoproteins, they are negatively charged, so they will repel the negatively charged particles, especially proteins। ठीक है, अब इसमें जो है फर्स्ट लेयर जो थी ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल की, इट इज हाईली पोरस, इट हैज मेनी पोर्स और वी आल्सो कॉल देम फेनेस्ट्रेशंस। ठीक है, तो इसमें इनका एक तो ये रीजन है कि ये इनका पोर जो है कैपिलरी पोर, इट इज नॉट दैट मच higher for the other capillary proteins। ठीक है, proteins cannot cross these pores, ठीक है, because of their diameter। large proteins with high molecular weight and higher size, ठीक है, large size, they cannot cross the capillary endothelial membrane। ठीक है, दूसरा इसमें अब somehow the diameter of this pore is similar to the diameter of the albumin, but albumin still cannot cross these pores because of its negative charges। ठीक है, इसमें से अगर ये आ भी गई तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे वी हैव glycoproteins that will repel the negatively charged proteins। if somehow small proteins are getting entry into the ट्यूबुलर फ्लूइड, ठीक है, ट्यूब्यूल में आ भी गई तो प्रॉक्सिमल कॉर्नल ट्यूब्यूल में थ्रू द प्रोसेस ऑफ endocytosis they would be taken up, ठीक है, and will degraded into components that are amino acids। फिर वो amino acids जो हैं they will उसके बाद थर्ड है फिल्ट्रेशन वुमेन्स कैप्सूल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल जो है it has food processes to that we call podocytes। ठीक है, and they actually encircle the tuft of capillaries that is the glomerulus, उसके around they are encircling it। ठीक है, इनके बीच में जो है फिर pores या slits होती हैं जिनको filtration slits कहते हैं। ठीक है, तो ये this is the structure of the glomerular filtration membrane। कि whatever the things are entering through plasma into the glomerulus, they have to cross these layers। सही है, तो इसमें से जो है proteins and the blood cells they cannot come into the urine। ठीक है, normally urine is divided of proteins and the blood cells। if somehow these proteins or blood cells are entering into the urine, that will denote that something happened to the glomerulus, there is something pathology going on। ठीक है, जिसकी वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो है ग्लाइकोप्रोटीन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वहां पे हैं, दे आर नॉट एबल टू रिपेल द प्रोटीन्स। ठीक है, the different disorders can affect that। सही है, तो ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। अब इसके थ्रू जो भी प्लाज्मा का अमाउंट फिल्ट्रेट हो रहा है, ठीक है, तो उसको फिर ये फिल्टर आउट कर रहे होते हैं। दिस इज द इंफॉर्मेशन आई ऑलरेडी
डिस्कस इन दी इनिशियल स्लाइड्स के भाई यूरिन फॉर्मेशन के 3 प्रोसेस हैं. वन इज फिल्ट्रेशन, अदर इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड इज द ट्यूबुलर सिक्रेशन. ठीक है, अब ये हमारे पास एरो शो कर रहा है, ठीक है, ग्रीन एरो कि ग्लोमेरुलस में, रिमेंबर दैट ग्लोमेरुलस में हमेशा फिल्ट्रेशन होती है. सही है. फिर जो है यहाँ पे ट्यूबुलर पोर्शन में रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन हो रही होती है. अब हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को इफ वी कंपेयर देम विद रेस्ट ऑफ द कैपिलरीज इन द बॉडी, ठीक है, देयर आर 2 डिफरेंसेस. ठीक है, अब उसमें डिफरेंसेस क्या हैं कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज दे आर हाईली परमिएबल, दे आर 100 टाइम्स मोर परमिएबल देन दी ग्लोमेरुलर देन दी अदर कैपिलरीज इन द बॉडी. ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पोर्स जो हमने डिस्कस किए. उसमें से फिर वो पोर्स भी सिलेक्टिवली किस तरह हो जाते हैं कि फिर उनकी जो मेम्ब्रेन की जो लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स वर नॉट letting the proteins or the other negatively charged particles to enter into the filtrate. ठीक है, तो ये है. अब दूसरा जो है कि इफ यू रिमेम्बर द फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है, कि उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट हैपेंस दैट द इनिशियली फिल्ट्रेशन इज हैपनिंग. ठीक है, फिर जो है वेन्युलर एंड पे जो है फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है. बट ओवर हियर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज throughout the entire length of the tubules or nephrons, कैपिलरी जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, ठीक है, थ्रू आउट देयर लेंथ फिल्ट्रेशन इज हैपनिंग. ठीक है, अदरवाइज पहले क्या होता है कि एट द आर्टेरियल एंड वहां पे फिल्ट्रेशन होती है, वेन्युलर एंड पे हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है. अगर हम दूसरी कैपिलरीज को कंपेयर करें इसके साथ, यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कैपिलरीज फिल्ट्रेशन इज हैपनिंग. उसका रीजन अभी हम आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है, रीजन अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. फिल्ट्रेशन प्रेशर्स को जब हम डिस्कस करेंगे, फिल्ट्रेशन प्रेशर्स दे आर लाइक द अदर प्रेशर्स, स्टार्लिंग फोर्सेस जो हमने डिस्कस की हुई हैं. ठीक है, because fluid dynamics will be same over here in the glomerular capillaries that we have discussed regarding rest of the capillaries. ठीक है, उसमें हमारे पास जो है स्टार्लिंग फोर्सेस जो हैं कुछ जो है फिल्ट्रेशन को फेवर करेंगी, कुछ अपोज करेंगी. यहाँ पे हमारे पास 3 स्टार्लिंग फोर्सेस हैं जिसको हमने देखना है. वन ऑफ देम इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर या ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है. ठीक है, कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो प्रेशर है इट इज वेरी मच हायर देन द रेस्ट ऑफ द कैपिलरीज इन द बॉडी. ठीक है, ये जो है 55 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है. अकॉर्डिंग टू गाइडन इट इज 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ठीक है, ये शेवुड की है, वैल्यूज यहाँ पे मेंशन्ड है. तो अब दिस प्रेशर इज वेरी मच हाई, सो बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर फिल्ट्रेशन इज हैपनिंग. ठीक है, ये हमारे पास एक आउटवर्ड फोर्स है जो कि इट विल ट्राई टू मूव द फिल्ट्रेट आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू द ट्यूबुलर पोर्शन. अच्छा, इसको अपोज करने के लिए हमारे पास 2 इनवर्ड फोर्सेस हैं. वन इज प्लाज्मा कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर. ठीक है, as I told you कि proteins cannot come out of the glomerulus into the Bowman's capsule क्योंकि उनको basement membrane में जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स ने रिपेल कर दिया. तो उसकी वजह से अब क्या होगा कि these and because of the molecular size as well, ठीक है, they cannot cross the capillary pores. These proteins will get collected or get accumulated into the glomerular capillaries. ठीक है, glomerular capillaries में वो जमा होती जाएंगी. ठीक है, and you already know that these proteins will try to move water towards them. ठीक है, so that means they are opposing the filtration, but because our capillary hydrostatic pressure is more than this pressure, so filtration will happen. ठीक है, ये इसको इतना ज्यादा अपोज नहीं कर पाएगा. इसी तरह पे नेक्स्ट इनवर्ट फोर्स दैट इज एक्चुअली अपोजिंग द फिल्ट्रेशन इज द बोमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. यहाँ पे प्लाज्मा कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर 30 है, गाइटन में इट इज अराउंड 32 to 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मेंशन्ड है. बोमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है हमारे पास, दिस इज द प्रेशर प्रेजेंट इन द बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है, ये भी जो है दिस प्रेशर इज लोअर देन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ठीक है, दिस इज अराउंड 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. According to Guyton, it is 18 millimeter of mercury. So it will oppose the filtration, try to oppose the filtration. अब इसमें फिर हमने देखना होता है कि what would be the net filtration pressure. That is actually the difference between the outward and inward forces, or the forces that are favoring the filtration and forces
अपोजिंग द फिल्ट्रेशन। तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं जो कि फिल्ट्रेशन को अपोज कर रही हैं, और एक फोर्स जो है वो फिल्ट्रेशन को फेवर कर रही है। ठीक है, तो इसको डिफरेंट वेज में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, if first you can subtract the Bowman's capsule hydrostatic pressure from the capillary hydrostatic pressure, whatever amount is coming, again subtract that amount from the प्लाज्मा क्लॉइड ऑनकोटिक प्रेशर। अच्छा, दूसरा वे जो है डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वे में बता रहे होते हैं कि पहले जो है हम इन दो फोर्सेस को, ठीक है, कि ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है, और दूसरी इनवर्ट फोर्स हमारे पास है ग्लोमेरुलर बोमेंस कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इनको हम प्लस करके, ठीक है, व्हाटएवर अमाउंट इज कमिंग वी विल माइनस दैट अमाउंट फ्रॉम द capillary hydrostatic pressure, and this will give us the amount of near about 10 millimeter of mercury. So this filtration process is, this pressure is responsible for the filtration. ये net filtration pressure हम कह रहे होते हैं। So these Starling forces are actually acting on the glomerular filtration। ठीक है, तो ये तुम लोगों ने इसमें याद रखनी है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के आगे हम बात करते हैं कि फिल्ट्रेशन रेट क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट दैट इज बीइंग फॉर्म बाय द नेफ्रॉन, ठीक है, उसका अमाउंट हमने देखना है। सो दिस इज एक्चुअली द रेट बाय व्हिच फिल्ट्रेट इज फॉर्म बाय बोथ किडनीज पर मिनट, ठीक है, फॉर्म बाय द नेफ्रॉन्स ऑफ द बोथ किडनीज पर मिनट, ठीक है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट, the rate that denotes the amount of plasma that is being filtered through the glomerular membrane of the nephrons, ठीक है, of the both kidneys per minute। अब इसकी जो amount कितना है 125 ml per minute, or you can say 180 liter per day। This is the normal amount or the normal glomerular filtration rate। ये तुम लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, इससे सबसे पहले जो है आगे कुछ डिस्कस करने के लिए कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करें, रीनल ब्लड फ्लो। नॉर्मली हमारे पास जो रीनल ब्लड फ्लो टुवर्ड्स दी किडनी है इट इज अराउंड 1100 ml पर मिनट है, ठीक है, 1100 ml पर मिनट है। सम बुक्स सेज के भाई 13 ml पर मिनट भी है, बट 1100 अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन हम उसको ले रहे हैं, तो 1100 पर ml पर मिनट है। अब इसमें से जो है इट इज एक्चुअली मेकिंग दी 20 to 25% ऑफ द कार्डिक आउटपुट, ठीक है, तो उसका ये फ्रैक्शन बन रहा है। तो अब इसमें जो है अब वो रीनल ब्लड फ्लो इतना आ रहा है। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे पास 178.5 लीटर एब्जॉर्प्शन हो रही है, जो भी ब्लड इसमें से फिल्टर हो रहा है, ठीक है, एंड आउट ऑफ दैट 1.5 liter filtrate is being excreted in the form of urine, ठीक है, इतना हम अमाउंट जो है एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। तो 1 लीटर पर डे जो है यूरिन हम एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है, and around 60 times our plasma is being filtered through the glomerulus। सही है। इसके बाद जो है अब इसमें हमने फैक्टर्स को देखना है कि अब रीनल ब्लड फ्लो जो है, ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो हमारे पास जो आ रहा है कि ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं दैट आर एक्चुअली गोइंग टू अफेक्ट द रीनल ब्लड फ्लो। ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बोमेंस कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, प्लाज्मा कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर है, glomerular capillary permeability can affect the GFR, as well as the size, shape and the electrical charges they can affect the GFR। सही है, तो they can affect the GFR। अब इसमें जो है हाउ रीनल ब्लड फ्लो इज गोइंग टू अफेक्ट दी GFR। अब इसमें जो है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है, इसमें ये हमारा स्ट्रक्चर है। दिस इज दी, अच्छा, कलेक्टिवली वी कॉल व्हाट डू वी कॉल टू द ग्लोमेरुलस एंड द बोमेंस कैप्सूल। एनाटॉमी में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली वी कॉल देम बोमेंस, ये रीनल कॉर्पसल्स, ठीक है, रीनल कॉर्पसल इसको हम कहते हैं। अब इसमें जो है ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। इसमें से इसका एक एफरेंट पोर्शन है, एक इफरेंट पोर्शन है। ये एफरेंट है जो कि डायलेटेड पोर्शन शो कर रहा है, ये इफरेंट पोर्शन है। इफरेंट पोर्शन जो कि फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएगा आगे, ठीक है, फिर रेनल वेन में ड्रेन करेगा। रीनल आर्टरी से जो है एफरेंट आर्ट्रियोल बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है, फिर कैपिलरीज में डिवाइड हो रहे हैं। तो अब इसमें जो है कि
ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा एंटर हो रहा है ग्लोमेरुलस में, तो हमारा फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रही होगी, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल में जितना ज्यादा अमाउंट हम ब्लड का हम इसमें इंक्रीज कर रहे हैं, मोर एंड मोर प्लाज्मा इज एंटरिंग इनटू द ग्लोमेरुलस फॉर द फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो हमारा जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी एनहांस हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड फ्लो को कम या ज्यादा करेंगे तो उस तरह अफेक्ट करें। अगर से फॉर एग्जांपल ब्लड less amount of blood is flowing through the glomerulus, it will decrease the glomerular filtration. इसमें जो है इस तरह इसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि how blood flow is actually affecting the GFR. अब ये हमारे पास जो है इसका एफरेंट और इफरेंट एंड दिखाया हुआ है ग्लोमेरुलस का. If you are going to constrict the afferent artery, actually the entry point into the capillaries. अगर एंट्री पॉइंट को कम कर दें, उसको नैरो कर दें, तो ब्लड फ्लो उसमें से बहुत कम जाएगा. एंड इफ ब्लड फ्लो इज लेस इन अमाउंट दैट इज एंटरिंग टू द ग्लोमेरुलस, सो इट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है. लेस अमाउंट ऑफ ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू दैट. सही है. इसी तरह इफ यू वांट टू इंक्रीज द जीएफआर, यू कैन कंस्ट्रिक्ट दी इफरेंट आर्टेरियोल. मतलब कि अब हमारा ये एंट्री पॉइंट जो है वो नॉर्मल है, ठीक है. हमने जो है उसका एग्जिट पॉइंट यहाँ पे बंद कर दिया है, उसको कंस्ट्रिक्ट कर दिया है. इसकी वजह से क्या होगा, कैपिलरी ब्लड विल गेट पूल्ड इनटू दी ग्लोमेरुलस. उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है. फिर वो जो फेवर करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करने में. सही है. इसी तरह इफ यू डायलेट दी इफरेंट आर्टेरियोल्स, इफरेंट आर्टेरियोल्स को अगर हम डायलेट कर दें तो यहाँ पे फिर जो है प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे पेरिफेरल रेजिस्टेंस हम कम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ से जो है प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा एंड इट विल डिक्रीज दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. इसी तरह इफ यू आर गोइंग टू डायलेट दी एफरेंट आर्टेरियोल, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, इफरेंट एंड एफरेंट. अगर हम एंट्री पॉइंट को बहुत ज्यादा डायलेट कर दें तो ज्यादा से ज्यादा blood flow would be there and there would be more fluid coming inside the glomerulus that will get filtered by means of glomerular membrane. ठीक है. So this is how blood flow is affecting the GFR. अगर ज्यादा होगा blood flow, GFR increase होगा. कम होगा blood flow, GFR decrease होगा. Now come to the Starling forces. Glomerular capillary hydrostatic pressure, as we have already discussed, this pressure is going to favor the filtration. So if you are going to increase the capillary hydrostatic pressure, GFR will increase. If you are going to decrease the glomerular capillary hydrostatic pressure, our GFR will be decreased. ठीक है. तो इसमें फिर ये इस तरह है. फिर इसी तरह जो है यहाँ पे इस तरह भी लिखती जाती हूँ कि if you are going to increase the glomerular capillary hydrostatic pressure, it will increase the GFR. सही है. अगर हम इसको डिक्रीज कर देंगे तो GFR हमारा डिक्रीज हो जाएगा. तो if you are asked about how that which factors increase or decrease the GFR, तो उसमें तुम लोग एक इस तरह बीच में इस तरह उसको कंपेयर कर सकते हो. एक साइड पे इंक्रीज लिख के, एक साइड पे डिक्रीज GFR लिख के, ठीक है. तो यहाँ पे फैक्टर्स लिखते जाओगे कि इंक्रीजिंग दी रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है. रीनल ब्लड फ्लो को अगर इंक्रीज कर रहे हो तो हमारा GFR इंक्रीज होगा. इसी को अगर हम डिक्रीज कर दें तो हमारा GFR भी डिक्रीज हो जाएगा. इसी तरह ये कैपिलरी ग्लोमेरुलस कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है. इसको अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा GFR भी इंक्रीज होगा. इसको अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा GFR भी डिक्रीज हो जाएगा. Bowman's capsule hydrostatic pressure, this was the inward force, that means it was going to oppose the filtration. So if you are decreasing the Bowman's capsule, ठीक है, Bowman's capsule hydrostatic pressure को अगर हम decrease कर दें, our GFR will be enhanced or increased. If you are going to increase this pressure, our GFR will be decreased. Likewise, if you are going to increase the plasma colloid oncotic pressure inside the capillaries, ठीक है, तो they will oppose the filtration, उसको filtration को कम करेंगी, so GFR would be reduced. If we are decreasing the plasma colloid oncotic pressure, this will going to increase the glomerular filtration rate. इसी तरह कैपिलरी परमेबिलिटी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें से फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, और इतनी हो सकती है कि इन सर्टेन डिसऑर्डर्स में कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी बढ़ती जाएगी, ठीक है. तो उसमें से फिर जो है फिल्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा
परमिएट होगा, ठीक है, थ्रू दैट कैपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें से उसकी अगर परमिबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो जीएफआर भी हमारा बढ़ेगा, फिल्ट्रेट रेट भी बढ़ जाएगा। फिर जो है साइज, शेप एंड दी इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जैसे हमने प्रोटीन्स की बात की, ठीक है। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, दे कैन नॉट क्रॉस द कैपिलरी पोर्स, ठीक है। somehow if some small diameter proteins जैसे कि albumin है, ठीक है, if it try to cross the capillary pores it cannot be successfully enter into the filtrate because of its electrical charges, because proteins are negatively charged, so they would get repelled by the glycoprotein component of the basement membrane, ठीक है, तो वो उसको रिपेल कर देगा, so protein won't enter into the glomerular filtrate, ठीक है। तो इसकी वजह से भी फिल्ट्रेशन रेट हमारा डिक्रीज या इंक्रीज इस तरह हो सकता है कि अगर हम प्रोटीन को बढ़ा दें तो एक्चुअली ये चीज होगी कि उसमें प्लाज्मा क्लोराइड ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ेगा, जीएफआर कम हो जाएगा। अगर हम प्रोटीन कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो जीएफआर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेशर फिर कम हो जाएगा उसमें, ठीक है। अदर देन दैट यहाँ पे जो फैक्टर्स जो कि जीएफआर को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे पास एक और हार्मोन है एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। इसका तुम लोगों को ऑलरेडी पता है फंक्शन, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो प्रेफरेबली एंजियोटेंसिन अफेक्ट द इफरेंट आर्ट्रियोल रादर देन एफरेंट आर्ट्रियोल। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है it causes the vasoconstriction of the efferent arteriole, and you already know that if you are going to constrict the exit point तो उसमें glomerular capillary pressure increase होगा, filtration rate बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह इसको अफेक्ट कर रहा होता है। फिर इन्हीं चीजों को अगर हम अपोजिट में इसके लिखते जाएंगे तो they will decrease the glomerular filtration rate. So these are the factors that are affecting the फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे यही कि एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल की वैसोडाइलेशन का बताया हुआ है, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रिक्ट द एफरेंट आर्ट्रियोल तो दिस विल डिक्रीज द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, उसकी वजह से हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा। Likewise, if you are going to dilate the afferent arteriole, more and more blood is entering into the glomerulus. This will increase the capillary blood pressure and will ultimately increase the net filtration pressure, और उसकी वजह से हमारा GFR increase हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें जो है इसको कम या ज्यादा इस तरह कर रहे होते हैं। Now the regulation of the glomerular filtration rate and the blood flow, renal blood flow, इसमें हमारे पास दो mechanism and extrinsic mechanism. Before talking about the regulation, we have to actually discuss what do you mean by the auto regulation, ठीक है। auto regulation का मतलब है कि auto means you know that self, ठीक है, regulation यहाँ पे हो रही है। इसमें जो है कि auto regulation means it would be the property of the organ itself to control the blood flow, ठीक है। वो खुद ही अपने यहाँ से ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। उसमें फिर दो मैकेनिज्म हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंट्रिंसिक मैकेनिज्म इसमें जो है ऑटो रेगुलेशन में काम करेंगे बाय दी ऑर्गन इटसेल्फ। अच्छा, ऑटो रेगुलेशन की वजह से क्या हो रहा है कि डिस्पाइट चेंजेस इन द मीन आर्टेरियल प्रेशर, यहाँ पे हमारे पास रेंज है टू मेंटेन द रीनल ब्लड फ्लो और जीएफआर 80 to 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यहाँ पे मीन आर्टेरियल प्रेशर होना चाहिए। कम या ज्यादा होगा तो इट विल अफेक्ट द जीएफआर। So a renal blood flow should be kept at a relatively constant level, मतलब कि 1100 ml पर मिनट जो हम बात कर रहे थे रीनल ब्लड फ्लो, या फिर अगर जीएफआर को भी हमने एक कांस्टेंट लेवल पे रखना है, कांस्टेंट लेवल इसकी क्या थी जीएफआर की 125 ml टू 180 लीटर पर डे। 125 ml पर मिनट है, ठीक है, एंड 180 लीटर पर डे है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो है इसकी, इसको हमने मेंटेन करना है। So the process through which we are maintaining that is known as autoregulation. अब इसमें इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है, इसके दो कंपोनेंट हैं, मायोजेनिक रिस्पांस होता है और दूसरा ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक। मायोजेनिक का तुम लोग ऑलरेडी पता है कि मसल
originated. And you know that the inherent property of the smooth muscle especially, when they get stretched they will respond to the increase in the pressure. ठीक है, they will try to constrict the vessels ताकि उसमें जो है pressure peripheral resistance कम हो. ठीक है, blood flow कम से कम जाए afferent arteriole के through. ठीक है, myogenic response ये होगा कि if more blood flow is entering into the glomerulus और उसकी वजह से increased GFR है, उसको रिड्यूस करने के लिए अब क्या होगा, इफ एफरेंट आर्ट्रियोल दे गेट कंस्ट्रिक्ट. ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी एफरेंट आर्ट्रियोल की, एंड यू नो इफ वी कंस्ट्रिक्ट द एफरेंट आर्ट्रियोल आवर ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द किडनी वुड बी रिड्यूस्ड. ठीक है, इसी तरह ब्लड फ्लो है उसमें एफरेंट आर्ट्रियोल फिर डायलेट हो जाएंगी. ठीक है, मोर एंड मोर ब्लड विल एंटर एंड इट विल इंक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एज वेल. सही है. फिर दूसरा हमारे पास इसका इंट्रिंसिक मैकेनिज्म का जो है कंपोनेंट है ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक. अब इसमें एज द नेम इंडिकेट देयर आर टू कंपोनेंट्स आर वर्किंग ओवर हियर, tubular portion of the nephron and the vascular portion of the nephron. Glomerulus जो है vascular portion है and the tubules tubular portion यहाँ पे आएंगे. अब together they make a juxtaglomerular apparatus. ठीक है, तो in the tubulo-glomerular membrane मैकेनिज्म सॉरी, ठीक है, ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म में हमारे पास जो है दिस एपरेटस इज वर्किंग. juxtaglomerular apparatus, juxta मींस adjacent to the glomerulus है. ठीक है, नियर दी glomerulus है. अब इसमें इफ यू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है. इसमें क्या है कि इसका जो वैस्कुलर कंपोनेंट है इट कंप्राइजेस ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. ठीक है, यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आ रही हैं. ठीक है, ये इसका वैस्कुलर कंपोनेंट है. फिर यहाँ से हमारा ट्यूबुलर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है कि बोमेन्स कैप्सूल के साथ यहाँ जो इसका फर्स्ट पोर्शन आएगा proximal convolute tubule है. ठीक है, this is the proximal convolute tubule. Then there would be the descending and ascending limb of loop of Henle. ठीक है, loop of Henle इसको हम कहते हैं. तो इसके एक descending limb होता है, दूसरा ascending limb होता है. ठीक है, फिर जो है ascending portion when मतलब कि distal convolute tubule. अब यहाँ पे जो है this nephron will pass back to the vascular component. अब इसके afferent और efferent arterioles जो है Bowman's capsule के glomerular capillaries के they make a fork. ठीक है, efferent और afferent आर्टेरियोल इनके बीच में से अब ये ट्यूबुलर पोर्शन पास आउट करेगा. ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल्स में से जब बीच में से पास करेंगी ना ओवर हियर द सेल्स विद इन दीज कंपोनेंट्स, मतलब ट्यूबुलर पोर्शन में और वैस्कुलर कंपोनेंट में सेल्स विल गेट स्पेशलाइज्ड एंड टुगेदर दे विल मेक juxtaglomerular apparatus. ठीक है, तो juxtaglomerular is formed by that it consists of specialized vascular cells and the specialized tubular cells macula densa at point where distal tubule passes through the fork formed by the afferent and efferent arteriole. ठीक है, of the same nephron. इसको हम juxtaglomerular apparatus कहते हैं. अच्छा, juxtaglomerular apparatus consist of different cells. Macula densa cells, mesangial और Lassus cells भी कहते हैं and the granular cells. ठीक है, अब जो है इसमें मैकुलर डेंसा जो है ट्यूबुलर पोर्शन में आ रहे हैं, ग्रैन्युलर सेल्स जो हैं वैस्कुलर कंपोनेंट्स में आ रहे होते हैं. अच्छा, ग्रैन्युलर सेल्स दे कंटेन रेनिन. ठीक है, ग्रैन्यूल्स वो हमारे पास वही आ रहे हैं. तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं दे रिलीज रेनिन. ठीक है, रेनिन का रोल पता है कि कम या ज्यादा जब ब्लड फ्लो करना होगा. अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ मैकुलर डेंसा? ठीक है, मेसेंजर सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर पाते हैं कि परमेबिलिटी को अगर इंक्रीज करना होगा तो दे शुड बी रिलैक्स्ड. अगर परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरी शुड बी डिक्रीज तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन होगी. तो उसमें जो पोर्स हमने डिस्कस किए थे बोमेन्स कैप्सूल में भी जो थे स्लिट्स पोर्शंस थे एंड एज वेल एज दी कैपिलरी मेम्ब्रेन में भी जो पोर्स थे वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. तो हमारा सरफेस एरिया कम होगा और परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरी मेम्ब्रेन वुड बी डिक्रीज. अब इसमें जो मैकुलर डेंसा है दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्यूबुलर सेल्स. ठीक है, तो what does it do? Macular densa actually monitor the changes in the salt concentration. Salt क्या है? Sodium chloride है. अब यहाँ से जो भी filtrate आ रहा है, when this filtrate is passing through this portion, juxtaglomerular apparatus जब pass out करेगा, तो macular densa will check the concentration of the sodium chloride. अगर ज्यादा होगी,
ठीक है। सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन अगर हमारे पास ज्यादा आ रही है तो अब इसका रोल क्या होगा कि मैकुलर डेंसा जो है उसका तब क्या रिस्पॉन्स है, और जब कम है उसकी कंपोजिशन मतलब सोडियम क्लोराइड इसमें बहुत कम आ रहे हैं तो व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ द मैकुलर डेंसा, ये हमने देखना है। इफ मोर एंड मोर से फॉर एग्जांपल जीएफआर इज डिक्रीज्ड, ठीक है, जीएफआर डिक्रीज, ब्लड फ्लो कम आ रहा है, अब इसकी वजह से क्या है फिल्ट्रेट कम है तो उसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड भी कम आएगा एंड that would be sensed by the macular densa cells of the justa glomerular apparatus. Now macular densa in turn what it will do, it will release certain vasoactive components or chemicals जैसे कि ATP और adenosine ये रिलीज करता है। Now ATP and adenosine they will actually preferably going to कंस्ट्रिक्ट दी इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो कम है, जीएफआर भी हमारा कम है, उसको इंक्रीज करने के लिए हमने इफरेंट आर्टरियोल को कंस्ट्रिक्ट करना है ताकि ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ सके और ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे वो रिलीज करेगा एडीपी एंड एटीपी, ठीक है, मैकुलर डेंसा अगर सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन इज लो, ठीक है, तो ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा एफरेंट आर्टरियोल की, सही है, और उसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर फिल्ट्रेशन रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अगर ऑलरेडी फिल्ट्रेशन रेट हाई है, रीनल ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है, तो अब उसमें उसको कम करना है तो मैकुलर डेंसा विल नॉट रिलीज एटीपी एंड एडीपी, ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा एफरेंट आर्टरियोल की वैसोडाइलेशन हो जाएगी, ठीक है, सॉरी कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू, मायोजेनिक रिस्पांस भी काम कर रहा है उसमें, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू कंट्रोल दी flow of the blood and the glomerular filtrate across the tubular and the vascular component of the glomerular membrane, ठीक है, तो ये इस तरह इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ग्रेनुलर सेल्स जो रेनिन का जैसे बताया, रेनिन का तुम लोगों को पता है कि ब्लड फ्लो अगर कम होगा तो रेनिन रिलीज होगा, देन यू नो रेस्ट ऑफ द स्टोरी कि हाउ रेनिन इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय गिविंग अस एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 eventually will affect the diameter of the efferent arteriole by constricting it, ठीक है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एनहांस होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर एक्सट्रिंसिक कंट्रोल जो है इसमें सबसे ज्यादा रोल होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट अफेक्ट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, रिमेंबर दिस, ठीक है, तो मोस्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज अफेक्टिंग द जीएफआर थ्रू बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। अब उसमें क्या होगा कि इफ देयर इज डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, ग्लोमेरुलर प्रेशर कम हो जाएगा, जाहिर सी बात ब्लड फ्लो वो कम जा रहा है, अब ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ये शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म के थ्रू aortic and the carotid sinus that are actually baroreceptors, they will detect change in the blood pressure that has been reduced, they will increase the sympathetic tone that will lead to arterial vasoconstriction throughout the body, ठीक है, and as well as the afferent arteriole vasoconstriction। उसकी वजह से अब क्या होगा कि हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी ब्लड फ्लो कम आ रहा है, ठीक है, तो अब ग्लोमेरुलस में जितना भी ब्लड हमारे पास आ रहा है उसको हमने लूज नहीं होने देना, कि उसमें से जो भी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनको ज्यादा लूज नहीं होना। अगर उसमें से अगर हम जीएफआर बढ़ा देते तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वुड हैव बीन लॉस्ट इन द यूरिन, लेकिन अब ऑलरेडी हमारे पास ब्लड फ्लो कम आ रहा है तो अब उसमें क्या होगा कि एफरेंट आर्टरियोल को हमने वैसोकंस्ट्रिक्ट कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा कि whatever blood is remaining in the glomerulus capillaries that would be retained there, ठीक है, उसमें से उसकी reabsorption और दूसरे processes कम हो जाएंगे, less amount of blood water and electrolyte would be lost in the urine, ठीक है, क्योंकि इसमें यूरिन वॉल्यूम भी हम कम कर रहे हैं, एफरेंट वैसोकंस्ट्रिक्शन जीएफआर कम होगा तो यूरिन वॉल्यूम कम बनेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल गोइंग टू इंक्रीज द कंजर्वेशन ऑफ द फ्लूइड एंड सॉल्ट्स, ठीक है, इसको हम बॉडी में रिटेन करेंगे, ठीक है, इससे वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे बाय इंक्रीजिंग द सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन, इवेंचुअली जब तक ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए, ठीक है, थ्रू लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म। तो शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म में ये इस तरह इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, सही है। सो दिस इज हाउ रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज हैपनिंग बाय एक्चुअली कंट्रोलिंग द रीनल ब्लड फ्लो। Now you can ask any question regarding this lecture. This lecture is very much important. इसके जो भी हमने फैक्टर्स अभी डिस्कस किए हैं तो वो तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, जो भी इसमें चीजें हैं वो जो भी फैक्टर्स जो कि जीएफआर को कंट्रोल कर रहे हैं
you should remember those factors. Now you can ask question. मैम एक बार रिपीट कर दीजिएगा एक्सट्रिंसिक वाला. एक्सट्रिंसिक वाले में ये है कि उसमें सिंपली यू हैव टू सी द रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम. इंट्रिंसिक में मतलब ये था कि ऑर्गन खुद उसको रेगुलेट कर रहा था, किडनी खुद उसको रेगुलेट कर रहा था अपनी मायोजेनिक प्रॉपर्टी की वजह से और ट्यूबुलोग्लोमेरुलर कंपोनेंट की वजह से. सही है. और फिर जो है उसमें हमारे पास क्या चीज आ रही है, एक्सट्रिंसिक कंट्रोल, मतलब कि अब हम बाहर से मतलब नर्वस सिस्टम से हम कंट्रोल ले रहे हैं. उसमें मोस्टली हमारे पास जो है सबसे ज्यादा रोल होता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी का. ठीक है. सिंपैथेटिक एक्टिविटी बाय मींस ऑफ बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स इसको कंट्रोल कर रही है. बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स तुम लोगों के साथ ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस हो चुका है. ठीक है. तो तुम लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए. तो फिर उसमें जो है उसमें ब्लड प्रेशर को कम या ज्यादा करना होगा. कम होगा तो फिर बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिविटी बढ़ेगी to increase the blood pressure. अगर ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई है तो बैरोरिसेप्टर्स will try to decrease the sympathetic activity ताकि जो है उसमें peripheral resistance भी कम हो, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाए और ब्लड फ्लो भी नॉर्मलाइज हो जाए towards the kidney. और कोई क्वेश्चन? नहीं है तो एक और चीज मैं तुम लोगों को बताऊं. तुम लोगों ने जो अपनी ऑस्पी की है, ठीक है, और या जो अपना जो भी क्वेश्चन तुम लोगों ने शॉर्ट एसक्यू में जो किया है, ठीक है, उससे रिलेटेड अब हमने जो गलती कर ली तुम लोगों से पूछ लिया कि रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, केमिकल रेगुलेशन हमने गलती से पूछ ली. वो हमारी बहुत बड़ी भूल थी जो हम लोगों ने तुम लोगों से पूछ ली. तो उसमें जो है मेजॉरिटी ने मुझे बताया है कि भाई उसमें मतलब कि केमिकल कंट्रोल का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था कि वो कीमोरिसेप्टर्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. ज्यादातर लोगों ने इसको न्यूरल कंपोनेंट का मुझे बताया. अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको केयरफुली पढ़ा करो क्या पूछा गया है, अपनी नहीं मारा करो उसमें. न्यूरल कंट्रोल अगर पूछा जाता है तो तब तुम लोग मुझे बता दे कि मेटली और पोटेंशियोमीटर्स का क्या रोल है. पेरिफेरल और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स का तुम लोगों ने बताना था केमिकल कंट्रोल में. उसमें भी फिर जब हम केमिकल कंट्रोल डिस्कस कर रहे थे लेक्चर्स में उस वक्त भी मैंने तुम लोगों को क्लियरली बोला था कि एओर्टिक साइनस एंड कैरोटिड साइनस, and you should remember the difference between the aortic arch and the carotid sinus and carotid and aortic bodies. Carotid and aortic bodies, they are chemoreceptors, while the aortic arch and the carotid sinus, they are baroreceptors. वहां पे तुम लोगों ने baroreceptors का रोल मुझे बताया कि how it is regulate the respiration. अब बैरोरिसेप्टर नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, तो इसका कहाँ से रोल आ गया रेस्पिरेशन में. अभी तो तुम लोगों ने गलती कर दी. एनुअल में करोगे तो फिर तुम लोग फिर अपने लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दो कि भाई पास तुम लोगों ने कैसे होना है. ठीक है. इस तरह ऐसे ब्लंडर्स वहां पे मारोगे तो वहां पे तो फिर तुम लोगों के पास होने की चांसेस तो बहुत कम है. तो मैं पहले ही बता रही हूँ जो तुम लोगों का हाल है. बहुत कम स्टूडेंट्स ने इसको सही प्रॉपरली अटेम्प्ट किया है. केमिकल और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स का मुझे रोल बताया है. अपनी बुक्स खोलने की जहमत कर लिया करो, इसीलिए मैं ये मेंशन कर रही होती हूँ. ये मैं अपने लिए नहीं लिख कर आती कि मैं यहाँ से पढ़ूँ शेयरवुड या गाइडेंस से अच्छे से पढ़ के तुम लोगों को लेक्चर दूँ. तुम लोगों को भी पढ़ना है कि क्या बात तुम लोगों से बोली गई है. सिर्फ लेक्चर्स की पीपीटी से ही नहीं तुम लोगों ने पढ़ना, तुम लोगों को बुक भी रेफर करनी होती है ताकि तुम लोगों का जो रिजल्ट है वो सही आ सके. कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई एम एंडिंग द लेक्चर. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज.